Twitter handle, Rahul Gandhi's Facebook handle. There were majority of the BJP guys, their student wing, they will come immediately. But can I ask a question? Whenever BJP leader is putting a Twitter or Facebook, how much of our people is going into that Facebook post, that Twitter post and criticizing them? Our people will tell good stories, good things in front of us. That is not possible. That is not needed actually. You will tell good words about me in this meeting before me. But whenever our leader has been attacked by BJP, not because of personal things, because of they know that Rahul Gandhi is the only person who can stop BJP in this country, who can fight against BJP in this country. That is why they are attacking, they are trying to demolish his image. What is our duty? To protect the Congress ideology, to protect the India's ideology, protect it. Our leadership from this false propaganda. My thing is our students' organization leaders, our people, our NSA leaders should come very actively into the social media. Not only in their own social media, they have to be participated a campaign against the BJP's this life-spreading mission. I think NSA has to do this in this 2 days conference. It should be one of the major focus area to develop how to develop the social media to counter BJP's this false propaganda, this lies. This has to be one. Number two, every time they used to tell about nationalism. Now you can witness that syllabus has been changed drastically. Curriculum has been changed drastically. They are distorting the history itself. The history of India is very much related to the history of Indian National Congress. When new generation is going to familiar with the Indian history, normally there may be an affiliation towards the Congress. Cleverly, they don't want to that type of affiliation. That is why they are very cleverly, purposefully distorting the historical things. They are changing the curriculum, they are changing the syllabus according to their version. We have to concentrate on this thing. My humble request is that we have to concentrate on this. Now, Congress Party is celebrating 75th anniversary of Indian independence. 1 year celebration is there. You know that a committee has been constituted party. Why don't they just go for these things? 1 year. This is the 75th years of Indian independence. New generation didn't know about the independence struggle. They didn't know about the Congress contribution about the independence struggle. How can you attract the students? Not because of this bhasan, not because of the seminar. You have to conduct physics examination. You have to conduct essay examination. You have to conduct sports competitions. You have to conduct cricket match. You have to conduct football match. Why don't you conduct a national level competition, quiz competition, essay competition, painting competition from among the students about the Indian independence. State level program, district level program. Whomever is winning district, they can participate in the state. Whomever is winning the state, they can participate in the national level. That type of competition is needed because nowadays new generation didn't know much about the contributions of the Indian National Congress in the freedom movement. So we have to talk these people in this discussion. So my appeal to you, we have to strengthen our, I know your limitations now, school and colleges are almost closed. Then also you are doing this COVID pandemic period also, education front also, NSA is doing good work. I am appreciating that, no problem, I am appreciating that good work. But we have to go far more. We have to build the organization from school unit, college unit, town unit, taluka, district, state, commitment NSY workers
has to be built in every nook and corner of the country. Then only, actually Congress party is no. NSY and Youth Congress is the recruiting agency of Congress party. Whenever is Congress strong, that's because of NSY and Youth Congress. We used to say that whenever is Congress weak, there is only one mantra: we have to revive Congress, strengthen Youth Congress, and strengthen NSY. Therefore, we are ready to support anything. I think Rahul Gandhi himself attended 2-3 conferences in the last 1 year, Zoom conferences. I was NSY state president. I didn't got this type of opportunity. Our supreme leader is attending every conference. Now he is ready to sit with you. He is ready to talk with you. Therefore, we have to reach maximum student leadership by programs, by education and everything. There should be a program. I think today and tomorrow, this is a very effective session to decide the future of NSY. How to move forward? Which are the programs? State level, how much is the program? District level, which are the programs? And national level. Well, I'm very much sure that Umar is performing well. Now you are the Madhya Pradesh president in India. Last election he lost how many votes? 500 votes, I think so. 2,000 votes. But luckily there was a by-election. He won with a margin of 2,000. 2,000, okay. Now, wherever performance is there, we are ready to acknowledge, we are ready to approve it. And that's why those who are completing successfully their tenure, definitely I am telling you, they will be accommodated in Youth Congress, they will be accommodated in Congress. That's no problem. If asking me to accommodate somebody in the state level, PCC level, those who are capable and competent, definitely we will accommodate them. Then you have to promote your own cadre in NSY. It should be like a river, just to flow. Just to flow. The leadership has to flow. Therefore, that type of good decision has to be taken today and tomorrow. And I think tomorrow, after leaving this hall, you should have a clear-cut idea about the future program, future ideology, future decisions. This is what I want to tell you, frankly, my brothers and sisters, because this Modi is trying to ruin the country. You know the venom they are spreading all over the country. You know that only communal venom there was nothing governance is the COVID period and everything has been discussed. You know that parliament session, one session has been completely spoiled by this government. They are not ready to discuss. There is no parliamentary democracy in this country actually. What for parliament? Parliament is for debate and discussion. Government is not ready for debate. Government is ready for discussion. Not ready for discussion. And how can the parliament become fruitful? Therefore, only ways to fight. We can fight. We can survive. We can win if we are ready to fight. I think you people have to make that mind. Yes, we are ready to fight. NSU, I told NSU, sky is the limit. You can fight anywhere. You can fight any extent. We are all with you. We will support you. We will maximum provision of support will give to you. With these words, I am concluding my speech. Thank you. Jai Hind. थैंक यू सर। सर मैं सभी नेशनल ऑफिस बेयर्स, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, सभी नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की तरफ से आपका थैंक्स करना चाहूँगा कि आप नेशनल एग्जीक्यूटिव में आए, हमें गाइडेंस किया और नहीं कि अभी भी नहीं, कभी भी एनएसपी छोटा सा भी कुछ करते हैं हम कोई इनिशिएट करते हैं और हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसे बूस्ट अप करने के लिए हमेशा केसी जी हमारे साथ जो है खड़े रहते हैं। वो चाहे लास्ट टाइम जब हमने ब्लड डोनेशन कैंप किया, उससे पहले हमने राहुल जी के बर्थडे पे हमने जब वैक्सीनेशन कैंप भी लगाया तो केसी जी को जब हम इनवाइट किया तो वो हमारे लिए आते हैं। और जिस तरीके से सर ने बताया कि ये हम पे है कि हम कितने कॉम्पिटेंट बनेंगे, हम जितने ज़्यादा कॉम्पिटेंट बनेंगे
उसके बाद की जो रेस है, वो रेस की जो डोर में बोलूँगा वो केसीजी के हाथ में है। हमें सिर्फ वहां तक पहुंचना है, उसके बाद आगे वहां पे प्रोजेक्ट करना, वो हमेशा से यूथ, खास करके यूथ लीडरशिप है, उसे आगे बढ़ाने का काम सर करते हैं। और ये हमारे लिए सबसे प्राउड मोमेंट भी इसलिए हो जाती है कि सर हिमसेल्फ वाज अ केएसयू स्टेट प्रेसिडेंट, सर वाज अ केएसयू यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, और आज सर जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल इंचार्ज है कांग्रेस पार्टी के। सो चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे एनएसयूआई हम लोग हो, हम सबकी क्या पेन है, हम सबको काम करते वक्त क्या दिक्कत आती है, ये सब जो है सर को पता है। तो इसलिए जिस तरीके से सर ने बताया कि कल जैसे 75 जो हम इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन बना रहे हैं, वो आपने एजेंडे में देखा भी होगा, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि 75th इंडिपेंडेंस डे को एनएसयूआई किस तरीके से स्टूडेंट्स के कैंपसेस में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में और स्टेट लेवल पे हम किस तरीके से उसको लेके जाएंगे, ये आज के एजेंडे में हमारे है। तो ये हम लोग खुद यहाँ से डिसाइड करके जाएंगे कि वो प्रोग्राम्स किस तरीके से होंगे। और मैं सर के सामने फिर से बोलना चाहूँगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ स्टूडेंट इश्यूज के ऊपर स्ट्रिक्ट रहना है। हम कभी कभी गलती क्या करते हैं कि हम यूथ कांग्रेस को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, हम मेन कांग्रेस को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम जो है वो केवल और केवल स्टूडेंट इश्यूज जो है, किसी भी टाइप जब स्टूडेंट इशू आए, स्टूडेंट्स कहीं पे हेल्पलेस फील हो, तो वहां पे एक ही नाम आना चाहिए, उसका नाम है एनएसयूआई। ये हमारा काम है। और जिस तरीके से सर, एक चीज मैं भी आपको इनके सामने बताना चाहूंगा कि पिछले 1.5 साल में जब हमारे कैंपसेस बंद हैं, मैं एक चीज विश्वास से आपको बताना चाहूंगा कि हमारी लीडरशिप की हमेशा हमसे ये नाराजगी रहती थी कि लेफ्ट आईसा या एबीवीपी जो है वो विजिबल रहती थी। लेकिन इन 1.5 सालों में सर अगर कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन विजिबल रही है, न्यूज में रही, वो एनएसयूआई थी। हम लोगों ने विजिबिलिटी जो है हमने बनाई, और उसका सिर्फ एक ही मतलब था कि हमने जो स्टूडेंट इश्यूज थे, जैसे मास प्रमोशन का इशू था लास्ट ईयर बच्चों का, हमारा नीट का इशू लास्ट ईयर हमने सबसे पहले उठाया था, JEE का इशू था, हमने उन इश्यूज को जो है वो नहीं छोड़ा। तो मेरी आप लोगों से सर के सामने मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमारा हमेशा से एक ही मोटिव होना चाहिए, टू स्टिक विद द स्टूडेंट इश्यूज। हमें डाइवर्ट नहीं होना। मैं समझ सकता हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम स्टूडेंट इश्यूज को छोड़ के हम वाइस चांसलर के घर का घेराव नहीं करते, हम वाइस चांसलर की यूनिवर्सिटी में घेराव नहीं करते, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले पार्लियामेंट घेराव हो। दैट इज नॉट गुड। पहले वाइस चांसलर का घेराव हो, उसके बाद पार्लियामेंट का जो घेराव हो। तो ये हमारा जो है हम सबका मोटिव होना चाहिए। और मैं सर से फिर से लास्ट में फिर से थैंक्स करूंगा कि सर हमारे बीच में हमेशा गाइडेंस के लिए आते रहते हैं, और आगे भी कभी भी हमें जरूरत पड़ेगी तो सर हमारी गाइडेंस के लिए रहेंगे। तो इसके बाद हमारे बीच में हमारे लीडर राहुल जी भी आएंगे। तो मैं फिर से आप सबको बोलना चाहूँगा कि सर ने जिस तरीके से बताया, ये हमारे लिए एक बहुत कीमती मोमेंट है, हमें इसे स्पॉइल नहीं करना है, सबको डिसिप्लिन में बैठना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बॉस आएंगे, हम सबको डिसिप्लिन में बैठना है। कोई अपनी चेयर से खड़ा नहीं होगा, कोई अपने फोन से फोटो वीडियो नहीं बनाएगा। अगर राहुल जी हमें अलाउ करेंगे, हमने बाहर एक स्टैंड रखा है फोटोग्राफ्स के लिए, उनमें सबके ग्रुप वाइज फोटोग्राफ होगी। कुछ ग्रुप, मैं अब ग्रुप बता रहा हूँ आप लोगों को, ग्रुप अभी से आप लोग याद करें, जिनके ग्रुप अनाउंस करेंगे वो ही उठेंगे। एक ग्रुप में एनओपीज है सारे, जब हम एक ग्रुप बोलेंगे तो एक ग्रुप में सभी एनओपीज जो हैं वो आ सकते हैं। और उसके बाद पिक खिंचाने के बाद फिर सीधे आप लोगों ने अंदर आना है, ताकि बाकियों को भी मौका जो है मिले। कैसे हैं आप सब? ठीक है, थोड़ा नीचे हो जाए प्लीज, लोगों पीछे देखें। तो अभी आपके प्रेसिडेंट ने मुझे बताया कि
कभी कभी NSUI के लोगों को लगता है कि यूथ कांग्रेस में NSUI से ज़्यादा ग्लैमर है, इनके शब्द हैं। तो कभी कभी आपको लगता है कि उस संगठन में ज़्यादा ग्लैमर है, इस संगठन में कम ग्लैमर है। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये अलग अलग संगठन है, इनका अलग अलग रोल है और इनकी अलग अलग यूटिलिटी है। ऐसी बात नहीं है कि वो ज़्यादा ग्लैमरस है, ये कम ग्लैमरस है। इसका एक काम है, उसका दूसरा काम है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आप इसमें से डेवलप होकर निकले तो आप उसमें आसानी से काम करोगे। अगर आप, और मेरा काफ़ी 15 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप ये सोचोगे कि हम डायरेक्ट उसमें चले जाएंगे तो वहां पे आपको बात समझ आएगी कि जो एक्सपीरियंस की हमें जरूरत है, जो सिर्फ NSUI दे सकती है, वो हमारे हाथ नहीं पड़ा और वहां पे जाके आप डूब जाओगे। तो इसको आप प्रोसेस मानिए। कांग्रेस पार्टी में पहला कदम NSUI, दूसरा कदम यूथ कांग्रेस, तीसरा कदम कांग्रेस पार्टी। आपका रोल स्टूडेंट इश्यूज का रोल है और आज से बेहतर टाइम आपको मिल नहीं सकता, क्योंकि आज जो देश में हालात हैं और जो बीजेपी की सरकार कर रही है, उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी, मैं मोबाइल ऑफ कर दीजिए, उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी NSUI को नहीं मिल सकती। इस बात से आप सहमत हैं? आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है बताइए? माइक है आपके पास? बीजेपी आपको क्या अपॉर्चुनिटी पकड़ा रही है, आप बताइए। सर, जिस प्रकार से अभी कोरोना का एक टाइम था, तो पूरे सारे जितने भी अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो शांत बैठी हुई थी, लेकिन हमारा जो NSUI और जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो स्टूडेंट्स के पास जा रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, आम जनता की हेल्प कर रहे हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित थे इस कोरोना से, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो या किसी भी चीज़ की बात हो, तो कांग्रेस पार्टी के सारे सिपाही, NSUI के सारे सिपाही, आपके जो बोला हुआ जो बात है कि देश की जनता की सेवा करना हमारा मेन काम है। जो सारे लोग घर में बैठे थे, ABVP घर में बैठी हुई थी, लेकिन NSUI घर से निकल करके एक एक दिन, एक एक पल छात्रों की और आम लोगों की सेवा करने का। ठीक है, और कोई? सर, हाँ सर, बीजेपी जो है स्टूडेंट के साथ अन्याय कर रही है बहुत सारे। सर इधर हाँ। सर, आपने पूछा बीजेपी हमें क्या मौका दे रही है। बीजेपी हमें मौका दे रही है, बीजेपी स्टूडेंट के साथ गलत कर रही है। वो ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम्स करा रही है, स्टूडेंट के वैक्सीनेशन पे ध्यान नहीं दे रही है, स्टूडेंट की जो जान खतरे में है कोविड के कारण, उस पर वो ध्यान नहीं दे रही है। और ये सारे इशूज जो हमारे पास है, इसमें हम तो स्टूडेंट्स की मदद भी कर सकते हैं। और जो बीजेपी गलत नीति पूरे देश में जा रही है, ये लोगों को बताकर, स्टूडेंट्स को बताकर उनके बीच में अपनी लीडरशिप को स्थापित भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अच्छा जवाब दिया। मैं ब्रॉडली आपको देश में क्या हो रहा है उसके बारे में बताना चाहता हूं और उसके कारण आपको किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी आपके संगठन को मिल रही है और आने वाले समय में और भी ज्यादा मिलेगी। देश में आप सब जानते हो कि इनफॉर्मल सेक्टर हुआ करता था, याद है आपको? जो आप कहीं भी जाओ, गांव में जाओ, शहर में जाओ, आपको बहुत सारे लोग अलग अलग बिजनेस करते हुए दिखेंगे। कोई चाय की दुकान चलाता है, कोई ऑटो मैकेनिक का काम करता है। ऐसे ऐसे लाखों लोग कुछ ना कुछ करते हैं। इसको हम इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं। फॉर्मल सेक्टर में बहुत बड़ी कंपनीज हैं और फिर मीडियम साइज कंपनीज भी हैं। तो बता सकते हो बड़ी कंपनी का नाम बता सकते हो?
टाटा, रिलायंस, और मिडिल साइज कंपनी का नाम बताओ। बजाज मिडिल साइज नहीं है, गोदरेज, ठीक है, एटलस, गोदरेज, ये मिडिल साइज कंपनीज है। थैंक यू। सरकार की ये व्यू है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें 4-5 कंपनीज को डोमिनेट बना दो। हर इंडस्ट्री में 1 या 2 कंपनी हो, और फॉर्मल सेक्टर में डोमिनेट 3-4 कंपनियां करें। उसमें आपने नाम बताया, टाटा है, अदानी है, अंबानी है, ऐसी 4-5 कंपनीज हैं। और सरकार की ये भी सोच है कि इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म कर दो, मतलब इसको वाइप आउट कर दो। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर आप रोजगार को देखें तो रोजगार फॉर्मल सेक्टर में बड़ी कंपनी देती, बड़ी कंपनी नहीं देती, और अगर फॉर्मल और इनफॉर्मल को देखें तो इनफॉर्मल सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा होता है। तो जैसे ये अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को आगे ले जाएंगे, वैसे इस देश में बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, रुकेगी नहीं। और इस देश को, अपने युवाओं को रोजगार जो देना चाहिए, देश नहीं दे पाया। और ये हर सेक्टर में कर रहे हैं। खेती के सेक्टर में देखें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, छोटे जो किसान हैं, उन पर ये 3 जो कानून लागू किए हैं, उनको मारने का तरीका है। चाय की दुकान की बात करें तो डिमोनेटाइजेशन उनको मारने का तरीका था। छोटे बिजनेस की बात करें तो जीएसटी उनको मारने का तरीका है। तो ये पूरा पावर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, अपने हाथों में ला रहे हैं, और जो 3-4 बड़े बिजनेस वाले हैं उनके हाथ में डाल रहे हैं। यही चीज एजुकेशन सेक्टर में हो। यहां पे आपने मुझे अभी नोट किया है कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन में भी आइडिया ये है कि हिंदुस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, यूनिवर्सिटी सिस्टम है, उसको 5-10 लोगों के हवाले करना, और नॉलेज सिस्टम के, उसको नॉलेज सिस्टम मत बनाओ, उसको प्रॉफिट सिस्टम बनाओ। तो आज क्या होता है, आप आईआईटी में जाते हैं, कम से कम पैसा देकर आप नॉलेज ले लेते हैं। आने वाले समय में आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आप लाखों रुपए देंगे और आपको जो नॉलेज मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलेगी। तो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, और इसमें रेजिस्टेंस कहां से आया? रेजिस्टेंस यूथ कांग्रेस के एरिया से नहीं आया। पहले रेजिस्टेंस कॉलेज और यूनिवर्सिटी से आया। जिस दिन इनको समझ आ गई बात, क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी वालों को मालूम है कि अगर देश में रोजगार पैदा होना बंद हो गया तो सबसे पहले कौन मरेगा आपको मालूम है। सबसे पहले जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कर रहा है वो मरेगा, उसका भविष्य बर्बाद होगा, और वो काम आपको करना है। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स के सवाल है। स्टूडेंट्स को क्लियरली ये समझ नहीं आ रहा कि देश में हो क्या रहा है। वो देख सकते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, देख सकते हैं कि प्राइसेस बढ़ रही हैं, देख सकते हैं कि कोविड में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मगर उनको ये नहीं समझ है कि ये हो क्यों रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही तो क्यों बढ़ रही? क्योंकि पूरी की पूरी पावर चुने हुए हाथों में कॉन्सेंट्रेट है। तो ये मैसेज आपको स्टूडेंट्स को देना है, और स्टूडेंट्स के इश्यूज जो हैं, उनकी जो मुश्किलें हैं, उनको आपको रेज करना। जितना अग्रेसिवली इसको रेज करोगे, उतनी तेजी से आप कांग्रेस पार्टी के इकोसिस्टम में आगे बढ़ोगे। सिंपल सी बात है। आपके लिए कोरोना जो था बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, आपने उसका फायदा उठाया और लोगों की भी मदद की। ठीक है, आपको फायदा उठाना है, मगर आपको लोगों की मदद भी करनी है।
वो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों की मदद करना। तो मैं आपको जो आपने कोरोना में किया उसकी बधाई देना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपके कोई सवाल है? सर, मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में देखा है कि लड़कियां ज़्यादातर दे डू नॉट कम आउट, एंड माय क्वेश्चन टू यू इज कि women's reservation bill is something that has still not materialized despite of government after government promising us that it will be a reality. Crimes against women are increasing exponentially and we still have men making laws for women. Abhi we see that we constitute 50% of the population, but we do not have 50% of girls in this room itself. So what is your take on the women's reservation bill and how important do you think is this reservation for women within parties, within political parties? See, first of all, there are 5 or 10 women here. Majority of the room is full of men, right? I blame the men for that, but I also blame the women for that. It's not only the men's fault. If you find, this is your organization. This is as much your organization as it is their organization. So, you must also fight for space in this organization. Just as it is their duty to make space for you, it is your duty to aggressively fight for space. So that's one aspect of it. The second aspect of it is that the Congress party frankly stands almost alone in pushing reservations in Lok Sabha and Rajya Sabha and Vidhan Sabha. Even when we were in government, some of our coalition partners were very uncomfortable with the idea of having women's reservations. And that's one of the reasons we were not able to pass the bill, because our own people, certainly the RSS, you understand why they are against women's reservation. Huh? Yeah, but there was resistance in the coalition as well. You can understand in the RSS the question of women's reservation doesn't even arise, because they are a male-centric organization. But this is going to be a fight, and it is mainly going to be a fight that is going to be led by the Congress party, and it is our commitment to provide women's reservation both in Vidhan Sabha and Lok Sabha. Thank you. Namaskar. उत्तर प्रदेश से एक अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव यूपी में होने वाले हैं। इसके दृष्टिकोण से देखते हुए स्टूडेंट के लिए जो इतने दिन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद थी, फीस उसके लिए जबरदस्ती वसूला जा रहा है। तो हमारे तौर से अगर मेरी पार्टी और वादा करती है जहाँ चुनाव हो उनके फीस नहीं लिए जाए, इसका एक बेनिफिट होगा। ठीक है। और एक चीज आपके लिए पगड़ी लाने के लिए मैं बचपन से फाइस पहनता इस तरफ काट के लिए अभी नहीं लिया, जाने से पहले करते हैं। हाँ? सर कुछ लोग अच्छा एक बात बताइए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स के दिल में इरिटेशन, गुस्सा है? जोर से बोलो हाँ ना है। उसका आप इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर रहे हो? कर रहे हो? कितने लोग यहां सोचते हैं कि एनएसयूआई उस गुस्से का इफेक्टिव यूज कर रहा है? हाथ उठा के दिखाइए, चढ़ाओ कीजिए। कितने लोग सोचते हैं कि एनएसयूआई उस गुस्से का इफेक्टिव यूज नहीं कर रहा? हाथ उठाइए। 2 लोग, बताइए क्यों? Sir, I am from Andhra Pradesh. In 2019, in AICC working committee meeting, yourself promised that you will give special category status to our state. Even though being a NSU leader, being a congressman, when we visit to universities and colleges, I am expressing myself, my level best about special category status, preference and benefits to our state. Even though when it comes to their students' response,
They know they are betrayed by YCP and both TDP. Even though they are questioning, how can we believe your union or your Rahul Gandhi? Directly they are questioning me about you, sir. I'm saying that in the whole history, whatever promises given by the AICC working committee, they never failed. But in 2019, in the leadership of Nagpathu Radhavana at Kurnool, even you have did a meeting assuring that to students, only with students, you have assured about special category status, sir. But students are not responding, sir. They know that you are the only option, but they are not connecting to us, sir. I don't know what the reason. No, but look, Andhra Pradesh is a special case. Andhra Pradesh, there are other issues involved in Andhra Pradesh, so that is not the case across the country. Would anybody else like to tell me? Bataiye. I have one question. What is your question? Sir, as a General Secretary and in charge of NSU and IYC, you brought that talent hunt program, and I belong to Maharashtra. Raju Sato Saab was also the product of that program. Don't you feel into the scenario where youth are having larger role to play? So as a talent research program, जिससे मिडिल क्लास का फैमिली का भी बच्चा कांग्रेस में आकर एक अच्छी पोस्ट पे जाए, तो आपको लगता नहीं कि इसकी आवश्यकता आज की सिनेरियो में भी आ रही है? हाँ, बिल्कुल, और आपको करना चाहिए। ये आपका संगठन है। These are your decisions. You have to take these decisions to bring new people into the party, into the NSU. These are your decisions. Take them. Thank you. Yeah. सर मेरा सवाल है, हम न्याय योजना लाए और हम बात कर रहे हैं न्याय योजना लाने की। ये एक आर्थिक आधार पे हम इस बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जब भी कभी हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और हम डिफरेंट कैटेगरीज की बात करते हैं, अगर हम खासकर ओबीसी की बात करें, तो जब ओबीसी का राइज हुआ है किसी भी पॉलिटिक्स में, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, जो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, वहाँ हम वीक हुए हैं। खासकर डिस्पाइट द फैक्ट दैट दी कांग्रेस हैज डन अ लॉट ऑफ थिंग्स ड्राइविंग राइट्स फॉर ओबीसी, इसके बावजूद भी अगर हम देखें तो कॉलेज लेवल पे ओबीसी रिजर्वेशन को फॉलो ज़्यादा नहीं कर पाए। खासकर अभी प्रोफेसर की संख्या भी एक भी ओबीसी नहीं है। और स्टूडेंट्स की बात करें तो जब भी कभी हम प्रमोशन की बात आते हैं, वहाँ पे भी हम ओबीसी रिजर्वेशन को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाते। तो दो चीज़ें एक हम साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि जो सबसे बड़ी मेजॉरिटी है हमारे पास ओबीसी की, जिसको हम अगर हालांकि जो एक 2011 के सेंसस से देखें तो 54% कंसिडर किया जाता है, उस राइट की बात आती है तो शायद हम लोगों को बहुत नुकसान होता है, कांग्रेस पार्टी को, एनएसयूआई को। बट ओबीसी के लिए सबसे ज़्यादा किसने किया? कांग्रेस। तो फिर ये कंफ्यूजन क्यों आती है? एग्जैक्टली, तो हम जानना ये चाह रहे हैं आखिर कौन से दो सेक्शन ऐसे हैं जो हम प्रोपेगेट नहीं करते ना, नहीं रियलिटी है। हम काम करते हैं और हम प्रोपेगेट नहीं करते हैं। वो काम नहीं करते, वो प्रोपेगेट करते हैं। आप किसी भी फ्रंट पे देख लो, आप ओबीसी की बात कर रहे हो, किसी भी फ्रंट पे आप देखिए, ये जो सर्वे हुआ था, कास्ट सर्वे, किसने करवाया? ओबीसी रिजर्वेशन किसने दिलवाए? तो किसी भी लाइन में आप देख लो, नरेगा किसने दिया? आपने किया। बट हमारा प्रोपेगेशन जीरो, एक्चुअली जीरो। इसका कारण है कि जो हमारी पॉलिसीज होती हैं वो मीडिया के इंटरेस्ट में नहीं होती। मीडिया के इंटरेस्ट और कांग्रेस पार्टी के जो पॉलिटिकल एक्शन है वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे। तो मीडिया प्रचार करेगा जो बीजेपी की पॉलिसीज। आप मुझे बताइए, आज चाइना ने लद्दाख में दिल्ली जितनी जमीन उठा के ले ली। अखबार में भी कह रहे हैं, आप सुन रहे हो? आप मुझे बताओ, अगर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते और 1000 किलोमीटर जमीन चाइना उठा के मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री टर्म में ले जाती,
तो मीडिया में क्या बोलते हो? 24 घंटा ये देखो देश को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, चाइना जमीन ले गई, चाइना जमीन ले गई, चाइना जमीन ले गई। अब चाइना जमीन ले गई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, सन्नाटा छा रहा है। क्यों? क्यों? हमने सरकार ने बॉम्बे अटैक हुआ, नरेंद्र मोदी मीडिया 24 घंटा कह रहा है बॉम्बे अटैक, कांग्रेस पार्टी वीक ऑफ टेरर। पुलवामा हुआ तो क्या बोले? एक लाइन बोली ना, क्यों? पुलवामा होता है तो नरेंद्र मोदी इज ग्रेट, बॉम्बे होता है तो मनमोहन सिंह इज यूजलेस। बात समझे? तो प्रोपोगेशन करने का औजार जो है वो हमारे इंटरेस्ट में नहीं काम करता है, वो उनके इंटरेस्ट में काम करता है। तो हमारा एक ही चारा है, हम उस एवेन्यू से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारा एवेन्यू डायरेक्टली जनता में जाने का है। जिस दिन हम डायरेक्टली जनता में चले गए, मीडिया का कुछ लेना देना नहीं होगा। तो अभी क्या कांग्रेस करती है? अभी अपना पूरा प्रोपेगेशन कांग्रेस मीडिया के थ्रू करती है। माइक्रोफोन है, आपको मैंने माइक्रोफोन पकड़ा दिया और कहा भैया भाषण करो, और जब आप भाषण कर रहे हो माइक्रोफोन में से कुछ और निकाल रहा हूं। माइक्रोफोन का फायदा है ये हो रहा है। हम जो भी कहें वो उसको उल्टा सीधा करके कुछ दूसरे तरीके से घुमा देते हैं। और जो नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी बोलना चाहती है, वो माइक्रोफोन ऑन करके लाउडस्पीकर लगा के चला देते हैं। ये रियलिटी है। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि जनता का जो रास्ता है वो टोटल खुला है, बिल्कुल टोटल 100% खुला है, और जनता तांगे है। बस हमारा आइडिया है कि भाई हम मीडिया के थ्रू जाएंगे। अब डायरेक्ट जाके देखो ना क्या होता है। और कांग्रेस पार्टी हर वक्त डायरेक्ट जाती है पहले से। आप टाइम्स ऑफ इंडिया को आज पढ़ते हो ना, एक काम करो, अंग्रेजों के समय का टाइम्स ऑफ इंडिया निकालो, लाइब्रेरी में जाओ, अंग्रेजों के टाइम का टाइम्स ऑफ इंडिया निकालो, उसको पढ़ो। 24 घंटा महात्मा गांधी को उसमें गाली देते थे, जाके पढ़ो। ये नई बात नहीं है, पुरानी बात। जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था उसको मीडिया ने यहां सपोर्ट नहीं किया था। मीडिया उस टाइम अंग्रेजों को सपोर्ट करता था, जैसे आज मीडिया इस सरकार को सपोर्ट करता है। तो आपका जवाब ये है कि हम एक्शन लेते हैं, मगर फिर हम उस एक्शन को जनता में प्रोपेगेट नहीं करते हैं। वो एक्शन नहीं लेते और अपने लाउडस्पीकर लिए घूमते हैं। तो आपको वो एक्शन लेना, एक्शन को प्रोपेगेट करना पड़ेगा। हेलो, गुड इवनिंग सर। ऑनलाइन हाँ सर, मेरा नाम अक्षय है, मैं पूर्व एनएसयू दिल्ली का अध्यक्ष हूँ। सर, आप संसद के अंदर चाहे कोरोना के मुद्दे की लड़ाई, चाहे वो फार्म लॉज हो, चाहे पेगासस का जासूसी कांड हो, और सड़क पर चाहे एनएसयू या यूथ कांग्रेस की लड़ाई हो, नीट जेईई का मुद्दा हो, एग्जाम लीक हो, स्टूडेंट प्रमोशन का मुद्दा, आज हम हर एक मुद्दे पर प्रोएक्टिव तरीके से मुद्दे को उठाते हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, और कुछों में हम जीत हासिल करते हैं। उसके बावजूद ये मैं नहीं, क्योंकि मैं एक नॉन पॉलिटिकल परिवार से आता हूँ सर, ये हर एक एनएसयू कार्यकर्ता जो देश प्रदेश से आया है ये फेस करेगा कि अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई कांग्रेस क्या कर रही है, एनएसयू क्या कर रही है। हमारे पास बताने के लिए तमाम बात। आपने पिछले 1.5 साल से बता दिया था सरकार को कि सुनामी आएगी कोरोना की, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। ये बातें हम जो करते हैं, दिखाते हैं। आज मीडिया क्योंकि चुनिंदा पूंजीपतियों के द्वारा ओन किए गए चैनल हैं, एक न्यूज़पेपर उनके निकलते हैं, न्यूज़ पोर्टल ऑनलाइन उनके हो चुके हैं, वो हमको वो स्पेस नहीं दे रहा है, और हमारी बातें जब जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, आपके द्वारा कही हुई बातें हमें पता है सर, लेकिन
वो आखिरी पंक्ति में खड़े हुए आखिरी आदमी तक नहीं पहुंच पा रही, उसका सर हम लोग कैसे उसको काउंटर करें? क्योंकि आज NSUA प्रोएक्टिव तरीके से हर मुद्दे पर लड़ रही है। आप सर 1.5 साल से कोरोना के मुद्दे पर सरकार को 2 महीने पहले चिता रहे हैं। कल मैं जम्मू में था और जम्मू में वैष्णो देवी जाते हुए जम्मू की जनता ने बीजेपी के लोगों से आज मतलब इतना गुस्सा है मैंने कभी नहीं देखा। हवाई जहाज में मेरे साथ बैठे थे लोग, ओपनली गाली दे रहे थे प्रधानमंत्री को डायरेक्ट। तो ये आप समझिए, इनकी जो पॉलिसीज हैं इनसे जबरदस्त गुस्सा पैदा हो रहा है। ये ऊपर लेयर लगी हुई है टीवी वाली, उसके नीचे बिल्कुल टोटल गुस्सा है। आप थोड़ा नीचे जाइए देखिए और वहां जाके आप अपनी बात रखिए। सर मैं आपने अभी कहा कि हम काम करते हैं, प्रोवाइड नहीं कर पाते। सर मैं प्रचार नहीं कर पाते अपनी। सर मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ सर, वहाँ सर आपका मार्गदर्शन में सरकार बनी सर, तमाम प्रकार के वादे हम लोगों ने चुनाव में किए और सारे वादे सर हम पूरे कर रहे हैं। सर छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है यहाँ पर 100 करोड़ से ज़्यादा गोबर खरीद लेते हैं हम, रोजगार वहाँ जा रहा है लेकिन हम रोजगार दे रहे हैं। 15,000 शिक्षकों की भर्ती जो 15 साल से वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट की दे नहीं पाई, लेकिन हम वहाँ पर केवल 3 सालों में 15,000 शिक्षकों की भर्ती निकाल देते हैं। बैगा आदिवासी समाज होता है सर, जिसको एक आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ होता था जहाँ पॉपुलेशन है, उसको वहाँ रोजगार नहीं मिलता, हमारी सरकार को रोजगार देते हैं। तो ऐसे बड़े किसानों के फैसले, मजदूरों के फैसले, युवाओं के फैसले हमारी सरकार वहाँ पर लेती है, कांग्रेस सरकार सर, लेकिन हम उसको प्रचार नहीं कर पाते नेशनल लेवल में। सर तो कोई पूछो सर क्यों सर ऐसा पीछे रहते हैं कि हम इतने बड़े फैसले लेते हैं सर, जहाँ पर जो सरकार किसान के नाम पे इतने दिन से यहाँ लोग धरना कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार राजीव नायडू। आप हमें छोड़ो, आप कांग्रेस पार्टी को छोड़ो। सड़क पर कितने किसान हैं? कब से बैठे हैं? कितने महीने से बैठे हैं? कितने बैठे हैं? आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हो, उनकी कौन बात कर रहा है? मीडिया उनके बारे में उठा रहा है कुछ? एक लाइन नहीं है बॉस, मीडिया कैप्चर्ड है टोटल 100%, 100% कैप्चर्ड है। और चाहे कांग्रेस पार्टी की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, किसी की बात नहीं उठाई जा रही है। बट इसका मतलब ये नहीं कि गुस्सा नहीं, गुस्सा है। छत्तीसगढ़ की बात आप कर रहे हो, छत्तीसगढ़ में हम अच्छा काम कर रहे हैं, मगर वहां पे जाके मीडिया को देखो, नेशनल मीडिया को देखो, तो ये रियलिटी आज के हिंदुस्तान, इसके खिलाफ आपको लड़ना होगा। आप में से काफी ऐसे लड़के होंगे, लड़कियां होंगी जो कहेंगे भैया मैं नहीं कर सकता, और ऐसे भी होंगे जो कहेंगे मैं इस सिचुएशन का फायदा उठा के लड़ूंगा, डेवलप होऊंगा और मैं अपना करियर बनाऊंगा। ये तो चॉइस आपकी है, मेरी चॉइस तो है नहीं। सर सीधी सी बात है सर। हाँ दिस साइड सर मॉनिटाइजेशन पॉलिसी अभी रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट और निर्मला जी लेकर के आए हैं। एक तरीके से नेम चेंज किया है और काम तो वही है कि एक एक करके सब कुछ बेचना है। कहीं ना कहीं सर देश ऐसा लगता है कि 70 साल पीछे जाएगा और जा रहा है। आपकी एक्सपेक्टेशन सर हमारे NSUI कार्डर से क्या है और किस तरीके से हमको इसको, जैसे प्रोपोगेशन की आपने बात की सर, देखिए कैसे बोलूं, मैं ये जानता हूं कि यूनिवर्सिटीज में सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है ना। मैं ये भी जानता हूं और मैं खुले तरीके से बोलता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि आप उस गुस्से को, ये आपका इससे क्लियर डायरेक्शन तो नहीं दे सकता ना, नहीं दे सकता इससे क्लियर। तो अगली बार मैं आऊंगा, मुझे ये देखना है कि भैया इस यूनिवर्सिटी में ये बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं घुस पाया,
ये बीजेपी का नेता इस यूनिवर्सिटी में गया, वो नहीं घुस पाया, उस यूनिवर्सिटी में गया और वहां से भागना पड़ा उसको। ये देखना चाहता करोगे? 100% करोगे? मतलब डर के भागना चाहिए उनको वहां से, आगे के साथ, समझ गए? मतलब उठ के भागना चाहिए। और मैं लड़कियों से भी कह रहा हूं, मैं सिर्फ इनसे नहीं कह रहा हूं, ये आपका भी काम है। आप लोगों को, स्टूडेंट्स को ऐसे मोबिलाइज करना है, हिंदुस्तान की रियलिटी ऐसी बतानी है कि इनमें से एक बंदा बीजेपी का यूनिवर्सिटी के अंदर ना घुस पाए, यूनिवर्सिटी छोड़ो स्कूल में भी ना घुस पाए। ये आप मेरे लिए करके दिखाओ, ये आप मेरे लिए करके दिखाओ, और फिर आप देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपने अपना मूड डाउन है आपका, ठीक है? मूड क्यों डाउन है? कि आप अपनी कैपेबिलिटी नहीं समझते, आप अपने आप को, अपने संगठन को ठीक तरीके से नहीं समझते। मैं ना आप में 100% भरोसा करता हूं, 99 नहीं, कि मेरे सामने बब्बर शेख बैठे हो और मैं चाहता हूं कि जो, देखिए बब्बर शेख जो होता है वो जंगल में कैसे जाता है? हाँ, इधर आओ, अच्छा उधर से आओ, पहले मुझे दिखाओ चूहा कैसे चल के आता है, चूहा कैसे आता है, दिखाओ ऐसे आता है, हाँ थोड़ा झुक के देखता है, डर के आता है, दिखाओ दिखाओ ऐसे आता है। नहीं करो यार, परिवार है, फैमिली है, करो, उधर से आओ। अब बताओ कैसे आता है जंगल में, जब जो आता है कैसे आता है? यूं आता है ना? अच्छा अब मुझे बताओ, उधर जाओ, अब मुझे दिखाओ बब्बर शेख कैसे आता है। ये तुम लोग ये दूसरा नंबर है, ये तो तुम्हें ऐसे अपनी माइंड ऐसे बनानी, जंगल में जैसे बब्बर शेख घूमता है वैसे आपको घूमना है। और बब्बर शेख के सामने कोई आता है, आ जाओ, ये कौन आया? ये आता है, ये मान लो ये यहाँ पे, मान लो ये आया है, कोई जानवर है दूसरा, ये बब्बर शेख नहीं, दूसरा जानवर है। तो जब दूसरा जानवर जाता है उधर, वो बब्बर शेख है, तुम दूसरे जानवर हो, कैसे जाओगे? तो अब इसने गलत बोला, क्योंकि उधर जाओ, अगर वहां बब्बर शेर है तो ये इधर दौड़ा, ये इधर कभी नहीं दौड़ेगा, ये उधर दौड़ेगा। तो अभी जब आप बब्बर शेर जब आता है कैसे दौड़ते हैं, क्या करोगे आप? ये होना चाहिए, जहां पे आपको एबीवीपी का बंदा दिखा वो घूम के उधर भागे, ये कौन आ रहा है? और अब आप बताओ, बब्बर शेर जब चूहे के सामने आता है, ये चूहा है, क्या करता है? करो करो, ये दिस इज द स्पिरिट। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ये जो है ना, ये आप सबके अंदर, इसको आपने दबा के रखा हुआ, और मैं समझता हूं क्यों दबाया, क्योंकि 24 घंटा मीडिया वाले आपको कहेंगे यार तू तो बब्बर शेर नहीं है, तू बब्बर शेर नहीं है, तू बब्बर शेर नहीं, तू NSUI का है, तू बब्बर शेर नहीं। और उनका लक्ष्य है कि आप में जो कॉन्फिडेंस है वो दबा। तो आपको ये समझना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ, आपकी कैपेबिलिटी, आपके संगठन को समझना है। इस संगठन ने 70 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर को लटका दिया था, रुका दिया था। दूसरी साइड जो चूहे थे वो वहां पे आगे पीछे दौड़ रहे थे, कोई उनकी सपोर्ट कर रहा था, कोई उनकी मदद कर रहा था, कोई कागज साइन कर रहा था, कोई
मैं जेल में माफी मांग रहा था, कोई कुछ और था। से वहां घूम रहा था, कह रहा था ये अंग्रेज कौन है, इनको परे करो। ये आपका संगठन है, इसको आप कभी भूलिए मत, क्योंकि अगर आपने ये बात पकड़ ली, चाहे आप NSUI में काम करो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी कोई और काम हो, आप उसमें सफलता प्राप्त करोगे। यह आसान काम नहीं है। ये संगठन NSUI का, यूथ कांग्रेस का, ये आसान काम नहीं है, आप समझ लो। बीजेपी बड़ी सिंपल चीज है। इधर आओ, यहां पर बीजेपी का मॉडल दिखाता हूं, इसके सामने आओ, यहां पे झुको, ये है बीजेपी का मॉडल। दूसरी और तरीके से दिखा देता हूं, झुको, यहां झुको। अच्छा भाई आप आना, इसके पीछे झुक जाओ, इसके पीछे यहां, इसके पीछे यहां। ये है बीजेपी का, बहुत आसान है। अगर आप यूं करने को तैयार हो, हाथ जोड़ने को तैयार हो, नो प्रॉब्लम। ये कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी क्या खड़े हो जाए, कांग्रेस पार्टी की है, हर बंदे को अपनी जगह बनानी है। और ये एक प्रकार से लड़ाई है, बिहार से ये लड़ाई। जब आप इस लड़ाई में से निकलेंगे, आप हैरान हो जाओगे कि यार मैं निकल गया, बच के जान बचा के निकल गया, मैं लीडर हो गया। आपको अभी लग रहा है कि बहुत मुश्किल चीज है, और वो सच्चाई है, मुश्किल ही। ये लीडर डेवलप करता है। ये महात्मा गांधी का संगठन है, आजाद का, बोस का, जवाहरलाल नेहरू का संगठन। 15-15 साल जेल में काटे हुए। मुझे बताओ बीजेपी के कौन से नेता ने, RSS कौन से नेता ने जेल काटी है, बता दो, नाम बता दो, कौन नहीं है, मिलना चाहता हूं मुझसे। कांग्रेस से घुस गया वहां पे। तो ये डरपोक आदमी है, ये देश को बेचने वाले हैं। और ये जो हमारी सेना है, ये बगरशेर है, ये किसी को नहीं बेचेंगे, मर जाएंगे। तो ये ऊर्जा लेके, ये एनर्जी लेकर आपको निकलना है यहां से, कि मैं ना किसी के सामने झुकने वाला हूं, ना किसी की बात मानने वाला हूं। मेरा जो काम है मैं पूरा करूंगा। मेरा काम स्टूडेंट्स जो हैं उनको जगाने का है, उनको समझाने का है कि भैया तुम कहां फंसे हो, तुम्हारा भविष्य नहीं है। मां बाप को 10-15 साल में आप भोजन नहीं दे पाओगे, अस्पताल की फीस नहीं भर पाओगे, जग जाओ, ये काम है। ठीक है, अब अगली बार आऊंगा, मैं पूछूंगा यूनिवर्सिटी का नाम, और आप मुझे बताओगे ये लोग आए थे बीजेपी के, भाग गए। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। हमारे NSUI के 2 आउटगोइंग स्टेट प्रेसिडेंट हैं। मैं राहुल जी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश का प्रभारी हूँ, और हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं विपिन वानखेड़े जी। आपने टिकट दिया, वर्तमान में विधायक हैं। ये सिर्फ आपकी वजह से है कि हम साधारण परिवार के लोग विधानसभा पहुँचे हैं। और अगर हम वहाँ करेंगे तो सबको उठ के वहाँ जाना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे? मैं आपकी टेबल पे आऊँगा, मगर एक भी बंदा खड़ा नहीं होगा, ठीक है? नहीं तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। एक बंदा खड़ा नहीं होगा, मैं आपके टेबल के पीछे आके खड़ा हो जाऊंगा, फोटो लेंगे, ठीक है? बाकी सब